वेलकम टू द बॉम्बे जर्नी। हाय एवरीबॉडी, आप लोगों ने मुझे इस सेटिंग में तो बहुत देखा होगा। यूजुअली कोई बैठा होता है मेरे पास, एक या दो बॉलीवुड के दिग्गज सेलिब्रिटीज या कुछ पॉलिटिशियंस या हमारे फेवरेट एथलीट्स। बट इस वीडियो में मैं अकेले गाड़ी क्यों चला रहा हूँ, या पूछ सकते हो। यार मैं आप सब लोगों को तहे दिल से शुक्रिया करना चाहता हूँ फॉर बीइंग इन्वॉल्वड विद अस इन सच गुड कैपेसिटी। जिन्होंने कमेंट किया उनको शुक्रिया, बट मोस्ट इंपॉर्टेंटली आप लोगों ने हमारे एपिसोड्स देखे, उन्हें सराहा, मैशेबल इंडिया को इतना प्यार दिया कि मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि ये है 2024 ईयर एंडर समरी वीडियो, जहां हम लोग कुछ सेलिब्रेटेड एपिसोड्स के बारे में, उन मोमेंट्स के बारे में और उन कहानियों के बारे में आपको बताएंगे। I got locked out. You'll have to unlock me. Maybe not. I'm thinking I'll just drive without you. Bye. Woo! Yeah. Give me some shoulders. Hey, hey, hey. Some shoulders. Let's go. Keep popping, get locked in. When you fly, Canadian Moroccan. No game way, no stopping. Open up door, not knocking. Boy, I'm a sexy girl, just for a top 10 in the world. Picture me. Did you know that? No. I was voted top 10 in the world, sexiest woman. That's what we're talking about. That's why it's in the lyrics. Woo! It's facts. Facts. Yes. Say it. Just for a top 10 in the world. Just top 10 in the world. Okay. Come throw love in the air. Now watch me making moves from India, Morocco. Now give me both your ears. I wanna tell you get the shows. Do you know what it means? Now give me both your ears. I'll show you what it. I want to tell you quelque chose. Quelque chose. is a French word for something. Oh wow! Yeah. How many bhasha are in I एक know, song? right? We're multicultural. So basically, I'm saying that. Give me both your ears. I want to tell you something. I'm gonna tell you what's up from That's India, what's happening. Morocco. ये आपके जूते मेरे को बड़े प्यारे लग रहे थे, इनको दिख नहीं रहे, एक बार दिखा पाओगे? कैसे दिखाऊंगा? जब हम उतरेंगे तो आपका शू साइज क्या है? मेरा भाई 9.5। 9.5 मेरा भी है, यही ले लो आप। अरे ऐसे मत बोलो। हाँ मेरा एक ही शूज है, मैं आपको जब जाऊंगा तो आपको दे जाऊंगा। अरे क्या बात कर, मैं तो ऐसे क्या हो बोल गया? रहा था। तो क्या हो गया भाई? अरे यार थैंक यू भाई, सच में। ये घड़ी का भी बताओ मेरे को, बट वो नहीं मेरे को घड़ी मत मांगी हुई है। शू साइज अच्छा है, शू साइज कहते देना चाहिए। हाँ और वक्त किसी को अपना नहीं देना चाहिए। मस्त बात है। बात घड़ी की नहीं है भाई, नहीं बात वक्त की है। लेकिन ऐसे लोग भी हैं जो कि आई वेंट ऑन अ टॉक शो वंस, नॉट अ टॉक शो लाइक सम डांस शो और समथिंग। आई थिंक वो हादसे के बिल्कुल बाद था, मैं धड़क को प्रमोट कर रही थी और बहुत फ्रेश था और सब बहुत ध्यान रख रहे थे कि मुझे ज़्यादा रिमाइंड ना करे कोई कि ये हुआ है। And so they would go through all of the plans for the day, and this show didn't tell us that they were planning a segment on mom. तो उन्होंने AV बजाया मम्मा के सारे गानों के with a voiceover in some emotional scene or something of her voiceover, and like these kids started dancing and giving like an homage, and it was quite beautiful. Yeah, But I just wasn't. watch, huh? No, but I wasn't. It was too soon. I wasn't ready. I don't know what happened. I couldn't breathe anymore. I've started howling. I've started crying. I've ran off the stage, gone into my van, had a proper panic attack. They obviously cut all of that out. What they did keep was just they took some other cutting of some other hissa where I'm just looking and clapping, and they pasted that as a reaction to this segment. That sucks also. Yeah, which of course people were like, does she really not give a fuck? But what happened was very different, and I remember that was very like I hadn't dealt with it, and so after she passed, I had to start promoting my film, and I was like, I need to work to distract myself. I got on this hamster wheel, and it was just other people's judgment was weird. Like जब मैं बाहर जाके बात नहीं करती थी इंटरव्यूज में, इवेंट्स में, तो लोग सोचते थे कि कितनी नक चढ़ी है। जब मैं स्नूटी होगी, खुश होने की कोशिश करती थी तो लोग बोलते थे अरे ये तो बिल्कुल इफेक्ट नहीं हुई है। So it was very confusing, and for me my mom is like everything, my source of validation, comfort, my whole world, and she was very overprotective and very invested. So when that went, I think I just started looking at the worst places for validation and comfort. I made some really shitty choices. पहले चीट करने का इरादा नहीं था, ठीक है जैसे कि कभी नहीं होता है। ठीक है। तो मैं मेरा मूंग दाल चीला खा रही थी। ओके।
और सब्जी रोटी वो जो भी। फिर मैंने सोचा मूंग दाल चीला क्यों, मैं जवार का पराठा खा ही लेती हूँ। सवाल जवार का पराठा खा लिया। फिर मैंने एक, और फिर मैंने बोला अगर पराठा खा रही तो राइस थोड़ा खा ही लेती, तो घी पोड़ी राइस खाया मैंने। फिर मैंने बोला अच्छा भी राइस खा ही लिया है तो आप चीट कर ही ले सकते हैं। सब कुछ मैं खा ही लेती। तो मैंने मैक्स स्ट्रीट बांद्रा से उनका हैंगओवर नूडल्स, उनका लॉबस्टर रोल और उनका वसाबी प्रॉन्स मंगाया और सब खा लिया। और फिर ये डिजर्ट खाया और फिर जो उल्टी की फीलिंग आई ना अंदर से। जामुन 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 लेने एमी को जामुन चाहिए थे, चलो ले सकते हैं? हाँ क्यों नहीं। कौन? ज्यादा देना यार। भैया ये कैसे दे रहे हो? 150 रुपए गाड़ी का तो पहिया। 150 रुपए पाव तो मतलब कितना के किलो हुआ? 600 किलो गए, 600 किलो गए, पहिया 150 दे। अरे पाइया भैया समझ नहीं आता इतना। देखो भाई आधा जामुन किलो 250 कितने ग्राम, के? 250 ग्राम। मीठा है ना, अच्छा नहीं है ओकर बोल। हो गया मस्त ये? है। अच्छा नहीं है? अच्छा है। भाई, सब में तो थोड़ा कतरा हुआ है किसी में। छोटे नहीं बड़े वाले देना। सही है, ओके। अच्छे भाई, अच्छे तो हैं। बहुत ज्यादा ये बढ़िया। भी दे दो, थोड़े और दो। 300 दे भाई, 300 दे। नमक है? नमक है। अब आप फेमस हो गए भैया। लीची वाले का नमक है। नमक का लीची के क्या तो लगा नमक डाले नहीं, नमक में लीची है। नमक लीची वाले भाई के पास दो। है ना, ये अलग खाना वाला। भैया लेकिन मेरी बात सुनिए, इस पे बहुत मिट्टी है, हम इसको धो दो। ओके तू पे हो आ जा, कोने था। ओके रिपोर्ट कम है देता पे वो गुरनीत मैं कर दूं, पे कर दे। ये भी आपने अच्छा किया, ये भी बाजी। जनरली हमारे पास ये दलील आती है कि शो पे आ जाते हैं लोग हाँ। और पैसे नहीं देते। नहीं बाजी क्या ये बात है। देखिए, ये जामुन लेते भी हैं और जामुन के लिए देते भी हैं। पिछली बार हमने आम लिए थे, आम लिए थे, आम खरीदे थे रास्ते से। ये इस बार इस आपको बार चुस्की वाले आम जामुन। चाहिए थे। हाँ वो और नहीं थे। उनका वो बहुत ही घुस के काम करने वाले एक्टर हैं वो। अच्छा जी। और रणवीर का ऐसा है कि एक बार हम लोग सीन कर रहे थे, वो मेरे गराज में आता है, मैं नहीं हूँ गराज में, वो आता है मुझे ढूंढते क्योंकि उसका कुछ घर पे लफड़ा हुआ, देखता है कि बच्चे कुछ इल्लीगल काम कर रहे हैं। देखिए, हम भी हुसैन दलाल के वो हैं, हाँ, क्या तो बोलते हैं। बच्चे जो है इलीगल काम करने की कोशिश कर रहे हैं। तो रणवीर देन मेरा मोइन आता, तो मुराद रणवीर कैरेक्टर गेट्स क्रेजी, बोलता है कि क्या कर रहा है, इनको तेरे को 10 बार समझाया बच्चों के साथ नहीं करने का। ये वो सीन हम लोग शूट कर रहे थे, बहुत गर्मी का टाइम, ऐसे वैसे सब, बहुत तेज़ बारिश हो रही, मज़ा आ रहा। वो सीन शूट कर रहे तो पसीने में ऐसे छोटी सी जगह, बहुत दिक्कत। तो एक मास्टर लिए, फिर एक क्लोज कटा, पूरा परफॉर्मेंस रणवीर के ऊपर हुआ। फिर बोले कि लेट्स स्विच टू मोइंस क्लोज नाउ। तो मैं बोला कि कहाँ से शुरू करना है, तो जोया सेड व्हाट डू यू थिंक, वेयर डू यू वांट टू स्टार्ट। आई सेड मैं ये वाले बिट से कर दूँ कि बीच में ये मैं यहाँ से आता हूँ, तो ये कर लेते हैं। तो रणवीर बोलता है कि क्यों, शुरू से कर। मैं बोला नहीं, मतलब सब अभी हो गया ना, सब लोग थक गए और ये क्या एनर्जी लो हो गया। तो कह रहा क्या घर पे लेके जाएगा क्या एनर्जी? इसके लिए तो एनर्जी है, इधर लगाना, टेक इट फ्रॉम द टॉप, पूरा कर। मैं बोला यार क्या आदमी है, मतलब मुझे लगा कि आई डोंट वांट टू डिस्कम्फर्ट ऑल एवरीबडी की, है ना, पूरा करते हैं। बट रणवीर बोला कि नहीं, ये बिकॉज ही नोज कि यार वो एक सीन में उसके बिगिनिंग में घुस के जो एक ग्राफ बनता है वो तोड़ के नहीं बनेगा, और एट द सेम टाइम उसको लग रहा था कि इसका पूरा होना चाहिए। तो उस तरह का सेल्फलेस को एक्टर है वो। वाह यार, और बहुत ज़बरदस्त आदमी है, बहुत। यहाँ पर मैं रणवीर सिंह जो फिनोमिनन है, उनको मैं रैप पार्टी में मिला, शूट पे वो मुराद था पूरा। अच्छा, हाँ, रैप पार्टी में मुझे पता चला रणवीर सिंह कौन है। ऐसा क्या? हाँ, वो उसके बाल से लेके उसके जूते तक पसीने में तर थे, वो इतना नाचा उन्होंने। हाय अनन्या, हेलो। वेलकम टू द बॉम्बे जर्नी इन अ रिक्शा। चलिए भाई साहब, थैंक यू। बट यही है कि ये जिंदगी एक अलग जिंदगी है ना, फील है इसमें। It's the best. I really enjoyed, like, because you really feel like
you are in Bombay. Yeah, I can smell everyone, hear everyone. Then I'm like, okay, you know, feel connected. आपको ड्राई फिश का ट्रक गया तो पता चलेगा. हाँ. लेकिन यही है ना कि रास्ते पे आपको पब्लिक ऐसा बनता एंगल से कैप्चर करने की कोशिश करेगी, वो तो दैट मस्ट irk you. Yeah, but then it's also a part of our job. We signed up for this, so it's up to me to protect myself as best as I can. ऐसा आपके कोई शब्द है पहचान के या पसंदीदा तो बताइए. दिल्ली के हैं मेरे. बताओ भाई. गालियां आएंगी. एक मीठी सी हंसी निकली. बताओ. नहीं बोल सकती. पर दोस्तों के साथ बात करते हुए वो गाली भी नहीं लगता. It's like बात चल रही है. It's more of तकिया कलाम. तकिया कलाम. करेक्ट. बट मुंबईया भाषा के कोई वर्ड फैसिनेट नहीं करते आपको? मुझे करते हैं ना. करते ना. वो बताओ. कंटाल आ रहा है. कंटाला. कंटाल बहुत करता. कंटाल बहुत इंटरेस्टिंग वर्ड लगता है मेरे को. अरे अक्खा दिन. और पता है धीरे धीरे मेरी लैंग्वेज में ना ये सब वर्ड्स आ चुके हैं, तो मैं अभी कभी मुझे खुद रियलाइज नहीं होता, बट जब मैं अपनी बहन से बात करती हूँ जो दिल्ली में है या भाई से, तो बोलते ये क्या बोल रही है तू, क्योंकि यहाँ के लोग जो सुनते हैं उनकी तो वोकैबुलरी में है वो वर्ड्स, बट वो लोग को लगता है कि अरे सडनली यू आर साउंडिंग डिफरेंट. या व्हाई आर यू साउंडिंग लाइक दिस. मैं जा रही है उधर. अक्खा दिन यही करते रहते हैं. अरे अक्खा दिन. कंटाला आ रहा है. कंटाला आ रहा है. Back to doing some fun talk. Back to college after all these years. Yeah, dude. This is the place. This is the place. कहाँ था सीन आपका? यहाँ का this is where we shot the fight scene with Aditi and Sushant. सबसे पहले तो उनका फाइट शुरू होता है, then इधर ही होता है ना, सेंटर में होता है. exactly यहाँ. इधर ही होता है. This is where we shot it. Yeah. From there, right in this area. So the whole circle was over here, to kind of stopping the crowd. एक मिनट, मुझे लड़ना नहीं था. And they have this whole conversation. हाँ क्या अच्छा, so if you're not friends, उसके बाद तू मुझे ड्रिंक पिलाएगा. हाँ पिलाएगा क्या है. He takes the money. So अरे ऐसे नहीं है तेरे पास ऐसे. अरे and then he catches that other friend also. अरे listen, pay for this. You pay for it. So उसमें उसको लपेट लेते हैं. Gives him a soft drink and चल तू पी ले. Okay bro. And exits. And the corridors up there is where we shot those bits of Kabhi Kabhi Aditi. Yeah. Walking along that. The super fans also have told me that there is a whole thing where you come out of the darkness into the light exactly on the lyrics. रात के बाद ही तो सवेरा होता है. We had to time it for when the sun is in a correct spot. Where we had sunlight on one side and shade on the other, and we're kind of at that place now. See, right now it's gone a little overhead. Correct. But earlier on, we had the entire side in shade and the entire side in darkness. The beauty of the fact कि हम लोग जब शूट कर रहे हैं तभी यहाँ पर एक शूट का सेटअप भी हो रहा है. All of that up there. तो ये डार्क है. Yeah. और आप निकल के आते हो. निकल के नहीं आता हूँ. It was a round camera. I'm in the center and the camera goes around, and it was like that. क्योंकि रात के बाद ही तो सवेरा होता है. It was the camera moves to kind of see the dark, and then the light. One shot we did on this. करके दिखाओ क्या किए. It was like that. The kind of moving camera from behind. So I think Aditi शायद वहाँ से जा रही है और कैमरा यहाँ से आता है, and as she goes, had to pick up with the camera and move like that. Correct. And then there was one whole bit of dancing in the center over there. Dude. Also we did one bit over here. यहाँ पे एक bench था, where this guy is sitting with the chocolate and he breaks the chocolate and I come and take the chocolate. Yeah. All of that we did. So bhai, how crazy to be here again, yeah. Correct. This is the one. This is the one. This is the one. Never have you ever done this also. Suresh? Do you have any Cubbon Park stories? Sometimes I go there and just sit there, relax with my friends. बहुत अच्छा लिया तूने. बहुत अच्छा लिया. खुद ही पॉज ले रहा है यार. Friend. कुछ बोलने वाला. Very good. But yeah, you should express. You should feel what you're feeling. So you like it.
Yeah, I like. Yeah, I saw a beautiful moment between these two. Men generally aren't very expressive, and I think men should talk to each other a little more. तो आप लोगों के ड्रेसिंग रूम की कोई कहानियां बताओ ना मेरे को. No, but this is a very, this is not very, this is uncommon when I hear this. We footballers, we talk a lot. Yeah? And it's not only about the happy times. Even at times when we have to pull each other up. Yeah. We do. It doesn't happen often क्योंकि जो banter है ना और जो पैर खिंचाई है वो बहुत extreme level की है. हाँ. एक football dressing room में. अच्छा. Normal लोगों के लिए नहीं है. I'm not even joking because so when I go back home, I cut all my cords of banter because I know I have to act civil because वो बहुत ही गंदे वाला banter है football में. जो चीज में किसी को दुख लग रहा है लगा लो एक हद तक उसी के बारे में खींचना है उसको. तो ये but then there comes a time where if somebody is really down, all the boys in their own direct and indirect ways are going to go and pick the boy up. Yeah. ये चलता आया है. Abhi, I know we talk a lot about mental health and how everyone has to speak up and stuff like that, which is good. But in football, in dressing rooms, I've seen it for 23 years. They know it. When somebody is down, we know it. Yeah. When somebody and we'll find ways to pick the boy up. Very nice. You love providing the strength and care that they need, right? क्योंकि टीम में होते ही 25 प्लेयर्स, 11 लोग खेलने वाले, सब खुश नहीं रहने वाले. Yes. तो और किसके घर पे क्या चल रहा है कोई किसी को पता नहीं है और वो आएगा वो स्माइल से लाएगा खेलेगा बट हमें वो समझ में आ जाता है कि कुछ तो गड़बड़ है. तो बात करते हैं ठीक है क्या है खेल नहीं रहा है. तो वो मुझे लगता है ये ड्रेसिंग रूम एक सेफ स्पेस हो गया है कि ये बात कही जाएगी भी नहीं और ये बात करके उसको भी शायद बेटर लगेगा. वो गेम खेल के गेम तो सबको पसंद ही है. वो गेम खेल के एक ब्रदर का फीलिंग है या कुछ है. तो मुझे लगता है वो बात करने से ये चीज़ जैसा भाई ने बोला कि फुटबॉल के ड्रेसिंग रूम में पहले से ही था तो इससे थोड़ा शायद हेल्प हो जाएगा. ज़्यादा नहीं तो भी बट वो थोड़ा हेल्प से कितना इम्पैक्ट पड़ता है उसके पर्सनल लाइफ में वो देखा जाएगा. अब पता बहुत स्ट्रेंज सिचुएशन ये है कि the game demands us to be so mad and ruthless. At the same time, we have to tame ourselves down and be more human and nice. Yeah. So बहुत ही extreme combination है. और शुक्र है कि हम football players हैं, we can understand that. So you might see somebody who's going crazy on the pitch, you know, looks like a mad dog, and suddenly he might be one of the most considered, most nice person off the pitch. I think that's what is so good about football. Sports in general, but because football is the best game in the world. Football. Yes. और सुरेश आपको क्या याद है when like you know I have always wondered why men don't say bro I love you. You know I think if that can come in then some friendships will just be so beautiful. But they say it. They do. They might not say it in a direct way, but I've seen a lot of them Actions, do it. Yeah. There are a lot of times. Actions है थोड़ा काफी. Regarding this, like till now, I feel shy to hug my father. To be honest. Yeah. Yeah. Because as a culture, we don't have a very. I passed that. You passed it? Yes, I passed that, and now whenever I meet my father, I hug him and I give him a kiss on his forehead. It's been, and not after I became a father. It's been like at least 10 years now. I know what he's feeling. Yeah, I know. You know, when I was in my teens and all, father was like, "Dad आ गए हैं, अब सांस में तो चुपचाप बैठ जाओ." You know what I mean? अब डैड आ गए हैं, everything has to be nice, और चुप रहो घर पे टाइप्स. कुछ बोल नहीं रहे हैं वो, डांट भी नहीं रहे हैं, but just the aura. The aura. Yeah. And the aura. Yeah. जबकि मेरे डैड ने घर पे मेरे को मेरी बहन को टच भी नहीं किया, मारा भी नहीं है, ना तेज चिल्लाया, but just डैड आ गए, you know, the word is डैड आ गए. मैं भी सोचने लग जाता था कितनी पढ़ाई की है, क्या किया सुबह से बताना पड़ेगा. पूछ लेंगे. हाँ, कुछ चप्पल साफ है कि नहीं, towels कहाँ रखे हुए, ऐसा कि नहीं पूछ रहे हैं वो. I think our moms use this weapon very nicely. डैड आ रहे हैं. Papa. So, but now I know what Suresh is feeling. Yeah. I've now passed it, and please do it. It's unbelievable. First time you'll feel awkward. Yeah. Daddy बोलेंगे क्या कर रहे हैं, पागल है क्या? You know what it is? क्या you feel the right feel like that. Yeah. But then now I've passed it, and I love it. I think I'm very friendly to my father now. 1993 में मैं आया हूँ और मैं और मनोज वाजपेयी हम दोनों ने एक घर किराए पे लिया था जहां हम रुके थे और वो घर एग्जैक्टली आपके इस वक्त राइट पे है जो बन रहा है
अंडर कंस्ट्रक्शन है, ये रीडेवलपमेंट में चला गया। दिस इज द बिल्डिंग। तो जहां से हमने शुरुआत की आज, वही तो कितना था भाड़ा इधर? इसका 2000 रुपये किराया था। नॉट बैड, नॉट बैड। मुझे बहुत तगड़ा झटका लगा था, क्योंकि 2000 रुपये में दिल्ली में बहुत कुछ मिल जाता था। यहाँ 2000 में एक कमरा मिला था, बट इट वाज अ ब्यूटीफुल रूम, इट वाज एयरी, इट वाज द कॉर्नर रूम। तो कॉर्नर का फ्लैट था। हाँ। और मनोज मुझसे पहले आया था। अच्छा, वो रेकी करके गए थे, उसने ले लिया था। अच्छा। तो मनोज ने मुझे दिल्ली में बताया, मैंने पूछा कितना किराया था। मैं दिल्ली में जिस घर में रहता था, इट वाज अ 2 बेडरूम हॉल विद अ बालकनी एंड अ टेरेस, एंड मैं किराया देता था 1200 रुपए दिल्ली में। दैट हर्ट्स। नाउ 2000 हर्ट? No. He told me 2000, and I was like, I'm going into a mansion, boss. मैं यहाँ आया तो मेरे को पहला झटका पड़ा। It was a 10x8 और 10x9 का रूम था, but it was a beautiful flat. I have great memories of that. और कमाल की बात यह है कि उस फ्लैट में कौन कौन रहा है वो जानने वाली चीज है। मैं और मनोज तो थे ही। हाँ। हम लोग बेसिक वो थे उसके, आप ओजीज थे। हाँ। फिर बाकी जो आते जाते लोग हैं वो होंगे ही। तो उसके बाद इसके बाद आया था विजय कृष्णाचार्य, जिसको हम विक्टर कहते हैं। डायरेक्टर जिसने धूम बनाई है, जिसने 900 करोड़ का बिजनेस किया। So, अभी उन्होंने ग्रेट इंडियन फैमिली बना रखी। हाँ, करेक्ट भाई साहब, बताओ। आओ। सो वो इस घर से आए हैं। इस घर में थे। अच्छा, तिग्मांशु धूलिया वो रहता यहाँ नहीं था। हाँ। क्योंकि उसके भाई जो है, हमला में उनका घर है। हाँ। लेकिन दोस्त तो यहीं रहते थे। हाँ, तो यहीं रहते तो रहता यहीं था। ऐसे वाले दोस्तों का नियम अनुसार वो होना चाहिए कि कुछ लेके ही आए आप। कि खाने का आइटम या पीने का आइटम जरूर लाएं, 2 बियर के साथ ही आए। पीने का आइटम हमेशा आता था। हमेशा। गुड जॉब तिग्मांशु भाई। यहाँ तो नहीं है वो, उसका देख ले आगे 3 दुकान छोड़ के, उसको शायद कोई चाहिए एक हेल्प के लिए कपड़े में। ये भी देखिए ना, मुंबई की क्या नायाब चीज है कि आपको कर देते हैं। ये तो आई थिंक इंडिया की नायाब चीज है। इंडिया में आपको काम मांगने चले जाओ, दिल से इज्जत से मांगो, दे देते हैं। कुछ ना कुछ काम मिल जाता है आपको कहीं ना। काम नहीं तो एटलीस्ट कुछ तो देंगे आपको। हाँ। खाना खिला देंगे, पानी खिलाएंगे। करेक्ट भाई। नेशनल अवार्ड मिला तो कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा, पर उस टाइम समझ नहीं आया कि क्या हुआ है ये, हाउ बिग इज दिस अवार्ड। क्योंकि काफी जल्दी 2013 में मिल गया था शायद के लिए। 5 रीजन बताइए क्यों देखें। अब एक नहीं समझ आ रहा है, 5 कैसे बताऊं मैं? ये श्रीकांत देखने के लिए 5 रीजन राज अभी आप बताएं। 5 रीजन क्यों ये फिल्म देखें। क्योंकि ये रिलीज हो रही है। क्योंकि ये थिएटर में है। क्योंकि आपका मन है फिल्म देखने का। क्योंकि गर्मी बहुत है, एसी मिलेगा 3 है और कल छुट्टी है, तो क्या करें, आइए अच्छी फिल्म देख लेते हैं। सही बात है। बहुत दिनों बाद मैं पेडल शिफ्ट कर रहा हूँ भाई, मेरे को थोड़ा मजा आ रहा है। सॉरी। मैनुअल कार से हट जाते हो ना जब आप, तो ये सब आनंद अलग होते हैं। आप लोग रोड ट्रिप पे गए थे ना, ये नॉर्दर्न लाइट्स देख के आए? नॉर्दर्न लाइट्स देख के आए। कैसा है भाई एक्सपीरियंस? हो भाई, लाइफ का बेस्ट एक्सपीरियंस अभी तक का। उससे बेहतर मैंने कुछ देखा नहीं है। वो होता है क्या, मतलब ऐसे जब आप चाहे? ऐसा नहीं किया हुआ आप जाओ और मिल जाएगा। हाँ, नहीं ना, you have to hunt for, you have to chase them। हाँ, मतलब चेज करना होता है। हमारे साथ तो हम जिस रिजॉर्ट में थे, हाँ, तो उन्होंने हमसे पैसे भी लिए ऑफ कोर्स कि ये नेक्स्ट डे सेकंड डे आपको नॉर्दर्न लाइट्स दिखाएंगे। और हमें क्या पता भैया, साइंस है इसके पीछे एक पूरा। कुछ एक ऐप है, मीटर्स हैं बहुत सारी, उसमें थियरीज हैं, वो सब मैच नंबर्स मैच करने होते हैं। हमें उसने बोला दिखाएंगे, हम चल दिए। वो ले गए, हमें आधा घंटा कहीं खड़ा कर दिया। 7-8 लोग थे कि लेट्स सी नाउ। आधे घंटे सब खड़े हैं। ओह हार्ड लक, टू क्लाउडी, लेट्स गो टू द अदर लोकेशन। Oh, there is another location ready, huh? Yeah. Backup. Of course, it's cloudy. How will you see northern lights? Yeah. फिर luckily कुछ हम कमाल की एक जगह पे थे, वहाँ पे मुझे कुछ इंडियंस मिल गए। कैलकाटा से थे। अरे वाह। तो उन्होंने बताया कि अरे उन्होंने बातचीत शुरू हुई तो उन्होंने कहा कि हम लोग तो जा रहे हैं नॉर्वे। हम लोग फिनलैंड में थे। नॉर्वे? उन्होंने नॉर्दर्न लाइट्स के लिए वहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस है दिखने के। मैंने पत्रा को बोला, और वो कैलकाटा से थे। हाँ। मारवाड़ी, बंगालीज। वाह वाह वाह। तो आई सेड कि अरे पत्रा कैलकाटा से ही है, और ऑफ कोर्स बातचीत हो गई।
फिर उन्होंने कहा कि हम तो आज ही जा रहे हैं, वी वर सपोज्ड टू स्टे हियर बट वी नॉट स्टेइंग एनीमोर। तो हमारे जो गाइड है उसने बोला कि चलो। तो हमने कहा यार हमें भी चाहिए। हमने कहा कैन यू आस्क योर गाइड? तो उसने अपने गाइड से पूछा, उसने बोला नहीं मेरा तो स्लॉट फुल है, 8 लोग का होता है, अभी तो नहीं जा सकते। फिर शायद उसने कुछ बोला होगा उसको कि यार ये है वो है एक्टर है। तो उसने कहा ठीक है बट अपनी गाड़ी चाहिए होगी, और वो पीक सीजन है, गाड़ी मिलना नामुमकिन है। ओह शिट। फिर हमने एक गाड़ी का किसी तरह किया अरेंज, वो हमें लेके गया नॉर्वे, कुछ 5 घंटे की ब्यूटीफुल ड्राइव। क्या? और फिर ये था कि उसने बोला था कि रात को आप पहुंचिए, उसके बाद 2 घंटा रेस्ट कीजिए, फिर हम निकलेंगे चेज करने। तो वो 4 घंटे भी लग सकते हैं, 5 घंटे भी लग सकते हैं। और ये ड्राइवर का प्लान था, हमें छोड़ेगा और वापस आएगा। तो अब था कि यार इस बंदे को रोकना है, ठीक है हमारे पास गाड़ी तो है स्ट्रेटेजी। हाँ कि ये गाड़ी तो इसी की यही चलाएगा भाई। तो उसका हमने पूरा ध्यान रखा। उसको था, अब इसको उससे बात की कि आप प्लीज कैन यू जस्ट स्टे ओवर, विल कम बैक टुमारो नाइट। He's like, let me ask my boss, and he asked his boss, ने बोला ठीक है। इसको रुकवाए कहाँ? तो जिस होटल में थे वहाँ रूम नहीं। अरे शिट। मैंने कहा शिट। तो हमने ऐसा एक कुछ स्वीट टाइप था हमारा। तो मैंने बोला कि तो हम दोनों ने आगे कहा यू कैन स्टे विद अस। तो उसको भाई को हमने अपने दूसरे रूम में रखा, जो हॉल दे रखा है होटल वालों ने। हॉल नहीं, रूम प्रॉपर रूम था एक। अरे वाह भाई। उसके बैक में पेन था, तो उसको मैं आइसिंग वाइसिंग करवा रहा था कि तू ठीक रहे भाई, तुझे बहुत गाड़ी चलानी है। क्या बात है यार, वेरी गुड। लिटिल डिड यू नो दैट योर रोड ट्रिप विल एंटेल दिस। फिर स्वीट था। फिर कुछ नहीं, हमारा जो गाइड था लोरेंजो, द ग्रेट लोरेंजो। कभी भी जाओ आप नॉर्दर्न लाइट्स देखने, प्लीज गेट इन टच विद लोरेंजो। He's the best guy in this business. वाह यार। फिर वो दोस्त बन गया, बहुत मस्त एकदम इटालियन लड़का, सब कुछ छोड़ के ही करता है वो पैशन के लिए करता है। उसका ये है कि अगर उसने आपको नहीं दिखाई ना, he won't charge you any money। या उसका ये वाला है, तो पैशन के लिए करता है, दिल से करता है कि मतलब मेरे को दुनिया को दिखाना है कि भाई ये हमारे पास एक नायाब वो है। तो मतलब कैसे क्लाउड्स के जैसा होता है क्या? लाइट्स होती हैं वो, कुछ होता है वो सन से कुछ साइंस से हीट रेज निकलती हैं, वो हमारे उससे जब टकराती हैं तो वो जाके फिर वापस आती हैं। तो अलग अलग गैस, वो गैसेस ही हैं बेसिकली। यस ऑफ कोर्स, गैसेस ओनली, अलग अलग कलर्स की होती हैं। जो गैस ज्यादा उस टाइम निकल रही है उसके हिसाब से कलर बनता है, ज्यादातर ग्रीन ही होता है। तो उसने फिर दिखाया हमें, यार मजा ही आ गया। इतनी भयानक ठंड थी, इतनी भयानक, -32 -40 टच कर रहा था। कितने लेयर पहने हुए थे पर जान निकली हुई थी। और वो लोरेंजो हमारा एक टी शर्ट एक जीन्स में जमीन पे लेटा हुआ है बर्फ में, बोल रहा है सी इट लाइक दिस, इट्स वेरी नाइस। सुन दे। हाँ ना नजारा थोड़ा नजारा, चटपट बातें, यही कहानी आते जाते, थोड़ी हंसी है थोड़े लतीफे, थोड़ा तराना, चटपट बातें। अंधाधुन है ये, अंधाधुन है, अरे अंधाधुन है ये जीवन सारा, पागल हाथी उड़ती बुलबुल, चलता घोड़ा कोई तो रोको। अरे अंधाधुन है ये जीवन सारा, पागल हाथी उड़ती बुलबुल, चलता घोड़ा कोई तो रोको। अरे लाओ कहीं से यार गाने पुराने बीते जमाने, गाने पुराने बीते जमाने, भूली नज़्में। अरे अंधाधुन है ये जीवन साला, पागल हाथी उड़ती बुलबुल, चलता घोड़ा कोई तो रोको। अरे लाओ कहीं से यार गाने पुराने बीते जमाने, गाने पुराने बीते जमाने, भूली नज़्में। अरे सोई तुम है ये, सोई तुम है, अरे सोई तुम है ये, इसको जगा दो सामने ला दो, इसको जगा दो सामने ला दो, सुबह उठा के शाम जगा के रात बुझा दो। अरे थोड़ा नजारा झटपट बातें, यही कहानी आते जाते। क्या नसीब हुआ है हमें, देखिए बढ़िया। इसका पूरा वर्जन सुनने के लिए आपको जाना पड़ेगा, माहौल महसूस करने के लिए आपको जाना पड़ेगा। तब उसमें बल्ली मारा है उड़न खटोला। यस। एक और सुना है वो, एक और सुना, कौन सा? चवन्नी। हाँ चलो सर।
अरे रुपयों की भरमार साथ में दबी चवन्नी, आए रे सिक्कों की झनकार साथ में दबी चवन्नी, आए रे रुपयों की भरमार साथ में दबी चवन्नी, रुपयों की झनकार साथ में दबी चवन्नी, आए रे रुपयों की भरमार साथ में दबी चवन्नी, आए रे सिक्कों की झनकार साथ में दबी चवन्नी, देश का बोझा लेके चार धाम में धूम गई सरकार साथ में दबी चवन्नी, देश का बोझा लेके चार धाम में घूम रही सरकार साथ में दबी चवन्नी, सामने दो खादी की टोपी पहने भूले बिछड़े यार साथ में दबी चवन्नी, सामने दो खादी की टोपी पहने भूले बिछड़े यार साथ में दबी चवन्नी, आए रे रुपयों की भरमार साथ में दबी चवन्नी, आए रे सिक्कों की झनकार साथ में दबी चवन्नी, आए रे रुपयों की भरमार साथ में दबी चवन्नी, आए रे सिक्कों की झनकार साथ में दबी चवन्नी। आज तो बाजारों के दाम देख के जले अंगीठी, अरे प्रेशर कुकर भी करेंगे इशारे देगे सीजी, आज तो बाजारों के दाम देख के चले अंगीठी, अरे प्रेशर कुकर भी बड़े इशारे देगे सीटी, अरे मुझको छेड़े सारे सौदे हॉट बोल के, मेरे गालों के गड्ढे मुंबई के पॉट होल से, अरे मुझको छेड़े सारे सौदे हॉट बोल के, मेरे गालों के गड्ढे मुंबई के पॉट होल से, अरे सैया है मेरे सारे सरकारी दैया, खा गए मेरा सारा नून तेल तरकारी दैया, अरे कागज हो गई मेरे देश की मैं ये बोलनी, ऐसे एक रुमाल के कपड़े से बन जाए चोलनी, ऐसे एक रुमाल के कपड़े से बन जाए चोलनी, हाय हाय हाय, मुल्क की चमड़ी लेके, मुल्क की चमड़ी लेके, मुल्क की चमड़ी लेके दमड़ी चावे लंगड़ा साहूकार साथ में दबी चवन्नी, मुल्क की चमड़ी लेके दमड़ी चावे लंगड़ा साहूकार साथ में दबी चवन्नी, हाय रे रुपयों की भरमार साथ में दबी चवन्नी, हाय रे सिक्कों की झनकार साथ में दबी चवन्नी, हाय रे रुपयों की भरमार साथ में दबी चवन्नी, हाय रे रुपयों की झनकार साथ में दबी चवन्नी। नहीं, मैं बिल्कुल फूडी नहीं, है ना? बिल्कुल भी नहीं। क्यों ऐसा? कभी से भी? कभी भी से, क्योंकि मैं तो मतलब बस इतनी जरूरत के हिसाब से एक आधी चपाती, थोड़ा सा इतना सारा ये मिल जाए मुझे, और मेरी सब्जी दाल, सब्जी हो, दाल हो, मटन हो, चिकन हो, मतलब मेरे नखरे नहीं है कि भाई ये खाऊंगा और ये नहीं खाऊंगा। क्या को ऐसा? आई डोंट नो, मुझे लगता है कि बहुत पहले एक बार क्या हो गया कि मैं डीएन नगर नहीं, जो अभी एसिड नगर है, जैसे न्यू अपर जुहू कहते हैं, अपर जुहू, हाँ वहाँ पे मैं रहा करता था, और मेरी मम्मी ने कुछ खाना बनाया था जो मुझे ठीक नहीं लग रहा था, तो मैं बोला यार ये तुमको मालूम है मुझे पसंद नहीं है, और मैं गया और जाके मैं डिवाइडर जो था रोड का, उस डिवाइडर पे जाके ऐसे लेट गया, सो गया, और वहां से गाड़ियां आ रही है और मेरी माँ ऊपर से चिल्ला रही है, अनीस आजा, अनीस आजा, अनीस आजा। खैर फिर मैं गया और उस दिन मेरी माँ जो है वो रोई, एंड देखो जो बनाऊं मैं, तू कभी ये बोलता है वो बोलता है, तो मैंने उस दिन पता नहीं मुझे क्या हुआ, आई एम वेरी अटैच्ड विद माय मदर, अच्छा, एंड मेरे लिए सब कुछ मेरी मम्मी और अब्बा है, एंड मैं अपना उस दिन के बाद पता नहीं मुझ में क्या हुआ, मैंने खाने को लेकर जिंदगी में कभी शिकायत नहीं की। अगर नमक कम है तो मैं ये भी नहीं कहूँगा कि इसमें नमक डाल दो, नहीं नमक डाल दो नहीं कहूँगा, नहीं जो है खा लिया मैंने। They realized I was not interested यार, वो थी प्रॉब्लम एक, तभी नया नया पीवीआर खुला था जुहू में, डायनामिक्स मॉल वाला, तो मैं जाके अकेले पिक्चरें बहुत देखता था, मजा आता है भाई, जो कर पाते हैं। पीछे चंदन था तो सिंगल स्क्रीन वाला फ्राइडे सुबह, दिल चाहता है लगा नहीं, दिल चाहता है was the summer in which I joined college. My first film I remember going with the college gang to see दिल चाहता है। वाह। और क्या करता था यार, फिर धीरे धीरे, I mean obviously I pretended to do homework or whatever and studying and reading, जितनी खराब एक्टिंग कर पा रहा था कर लेता था to pretend to be interested, but I really wasn't able to keep up beyond a point. मुजफ्फरनगर में एक दिन में गया तो मैंने जो वेस्टर्न यूपी कभी मुझे किसी फिल्म में पकड़ना हो तो मैं आसानी से पकड़ सकता हूँ, मुझे लगता है, क्योंकि उनसे बहुत सीखा हूँ मैं उस दौरान। हालांकि पहाड़ी हूँ मैं। बुंदेलखंडी चलती है और बघेलखंडी चलती है? नहीं वहाँ नहीं, उत्तराखंड में तो वैसी हिंदी चलती है, गढ़वाली एक्सेंट अलग है, हाँ कुमाऊनी एक्सेंट अलग है। तो वहाँ मुजफ्फरनगर की बात कर रहा था, मैंने एक को बोला, एक अजरुद्दीन नाम था, मैंने कहा आंटी वहाँ मुजफ्फरनगर गया मैं पैशन में,
आंटी अजरुद्दीन है, तो आंटी ने देखा 1400 रहा। मैंने कहा हमारे यहाँ तो पहाड़ में कल्चर मतलब साला भी नहीं बोल सकते माँ बाप के आगे। मैंने कहा ठीक है आंटी प्रणाम, 14 को सोने दो। मैं वहां से बाइक ली, मेरे लिए शौक था, कल्चरल शौक था कि हाउ कैन शी से दिस कि 1400 रहा। मैंने कहा यार ये पकड़ना है भाषा। और 2 घंटे हो लिए, दूध बिलोते बिलोते घेर निकल को ना दे रहा, ऐसा कुछ था वहां का फील। तो वो मैंने वहां से बहुत सीखा उस स्कूल से। पापा कहते थे ये तू क्या कैसी भाषा बोलने लग गया है, थोड़ी तहजीब वो सब लेकिन यार मजा इसमें। हाँ तो हम लोग यहाँ खेलते थे एक्चुअली। अरे वाह जी वाह। हाँ यहाँ क्रिकेट खेलते थे पीछे। और अभी तो ये बिल्डिंग्स काफी बहुत डेवलप हो गई हैं। ये है अपना वर्सोवा म्हाड़ा, न्यू म्हाड़ा, वर्सोवा का न्यू म्हाड़ा। जितने लोग देख रहे हैं प्लीज कमेंट्स में बताना आप यहाँ के निवासी हैं, तो अब आपको एलुमनस मिल गए अपने। एलुमनस हाँ ठीक है, लेकिन हाँ मैं यहाँ रहता था और काफी यादें हैं यहाँ पे मेरी इन टर्म्स ऑफ स्टार्टिंग माय करियर। यहाँ पर मैंने जो जिनके साथ में रहता था उनको मैंने बोला था कि मैं कोकिला बेन पे इंटर्नशिप कर रहा हूँ। मैंने उनको नहीं बताया था मैं प्यार का पंचनामा शूट कर रहा हूँ। क्या बात कर रहे हो, ऐसा करना पड़ता है क्योंकि नहीं देते ना, क्योंकि किसी को, मुझे भी यकीन नहीं था कि मेरी फिल्म रिलीज होगी। या फिल्म, वो लव की पहली पिक्चर भी थी ना। हाँ सबकी पहली पिक्चर थी, तो हमें किसी को भी नहीं पता था कि हम लोग मुझे लगा था कि पता चला बाद में टॉन्ट्स मारने लगे सब कि और हीरो आ गई तेरी पिक्चर। तो मुझे वैसा नहीं चाहिए था, मुझे लोगों के बीच में ये भी नहीं रखना था। मैं ये कभी इनको बताया नहीं कि मैं एक्टिंग करने जा रहा हूँ, या तो मैं हमेशा छुपा के रखता था वो चीज़। तो ऐसा था यहाँ, बट बड़ा अच्छा लगा यहाँ। बड़ा ग्रेट टाइम। मुंबई के स्लैंग कोई आपको पेक्यूलर लगते हैं जो? No, I mean it's most of the Mumbai slang I know is Rohit Sharma on the stump mic. So I'm a big fan of Rohit Sharma. So yeah, they mute half of that stuff. Yeah, I know. Good for us. Otherwise, कान में से खून निकलेगा public के. Yeah. So like, have you picked up any word? Is there a word that you can recollect? I can, but I can't say it. You know. One of those. Okay. No problem. Yeah. No problem. आर्ट के शौकीन लगता है आप? हाँ ये सब मूर्तियाँ है जी। हाँ मैं हैंडलूम हैंडीक्राफ्ट्स में काम करता हूँ। हाँ। मैं आपको एक साड़ी देता हूँ। अरे वाह। नमस्कार। क्या बात है ये? आप देखो ना, दिखता भी एकदम कूल है। एकदम धुआं नहीं निकलता इसमें, नो पोल्यूशन। इसमें सो सकते फिर आराम से रहे। हाँ गर्म, एक 15-10 मिनट में पूरा खुली गर्म हो जाए। क्या बात है। और ये ऑन है? अभी नहीं, वो करेगा। ये कहाँ से लेके आया? ये अपने यहाँ बनता है। हाँ क्या? अभी इथेनॉल की एक जेली से स्टोव बना हुआ है। रियली? हाँ वो गैस से 1/3 प्राइस में अपना ये होता है। ये आपसे मेरे को सारे इनकी टीम से एड्रेस लेने पड़ेंगे सारे। आई थिंक अगर कोई भी चाहे तो पूरा अपना घर ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल, है ना? ग्रीन पावर, ग्रीन एनर्जी। हाँ ये डल क्या रहा है साहब इसमें? इथेनॉल, बायो इथेनॉल है ये। बायो इथेनॉल है। ये किसानों ने तैयार किया हुआ पेट्रोल है। क्या बात है। इस पे गाड़ियाँ, ट्रक, बसें, स्कूटर, ऑटो रिक्शा चलेगी, चल रही है। क्या बात है। दिस इज इट? यस, लग गया। अगर कोई ये, और इससे धुआं बिल्कुल नहीं, नो कार्बन डाइऑक्साइड। नो कार्बन डाइऑक्साइड। इट स्मेल्स आल्सो लाइक नथिंग। चलो सर, ये एक साड़ी है। अरे आप लाइक मैटिन बनाओ, ये आप ले जाओ। क्या बात है। ये पत्ता ओरिजिनल है। हाँ जी। ये सोलर पर निकला हुआ सूत है और सोलर पर इसका साइजी ब्लीचिंग एंडिंग हुआ है। और ये अभी हमने बड़े बहुत लोग पसंद करते हैं इसको। ऑर्गेनिक साड़ी, इसकी वेबसाइट है। हाँ जी। वर्धा से। और ये मैंने कतर रेडीमेड गारमेंट की, उससे ये आप बता रहे थे जो। हाँ 1200 महिलाओं को ट्रेन किया। मैं बहुत सेवा का ही काम करते रहता हूँ। क्या बात है। ये अजून एक साड़ी दो। हैंडलूम क्लस्टर। किशमिश है क्या? ये मेरी किशमिश है, ये मेरी किशमिश। हाँ कोई बात नहीं, क्या करूँ मैं? पूरे आपके स्वेट की धज्जियां उड़ जाएंगी। किशमिश छोड़, अभी हो गया। इसलिए मैं सफेद कपड़े पहन के नहीं आती। क्या मस्ती, शट अप। अच्छा ये मस्ती है। हाँ डाइट वेट का सीन नहीं होता कुछ नहीं, अभी तो नॉन वेज छोड़ देना, जिंदगी छोड़ दी। अब क्या डाइट, जो ये भी नहीं खाऊं क्या? अब मर जाऊं क्या?